Good afternoon, students. We will continue our lesson electoral politics. The last step of election procedure is polling and counting of votes. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. Every person whose name is on the voters list can go to a nearby polling booth, and once the voter goes inside the booth, the election officials identify her or put a mark on her finger and allow her to cast her vote. An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a far way. Let us earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. But nowadays, electronic voting machine, short form is EVM, are used to record votes. The machine shows the name of the candidates, add the party symbols. Independent candidates too have their own symbols allotted by Election Commission. And the last stage is last stage is counting. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. Understand? And here the election procedure is completed. अब हम देखते हैं इसको हिंदी में। मतदान की आखिरी या मतदान का आखिरी चरण या मतदान की आखिरी स्टेप है मतदान और मतगणना। चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है। समझ में आ रहा है ना बेटा? जिससे कि वो देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। पर आजकल मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है और इसमें क्या होता है कि मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं और निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उनको भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा देना पड़ता है। अब मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सीलबंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती
की जाती है। और वहाँ पे क्या होता है, सभी दलों के एजेंट रहते हैं, जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। और किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। और आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। और ये हमारे चुनाव की सबसे आखिरी स्टेप होती है, या जिसे हम कहते हैं ये चुनाव का आखिरी चरण होता है। अब हम देखते हैं व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। We get to read a lot about unfair practices in elections. Newspapers and television reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. First, inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list. Misuse of government facilities and officials by the ruling party. Third, excessive use of money by rich candidates and big parties. And fourth, intimidation of voters and rigging on the polling day. Many of these reports are correct. We feel unhappy when we read or see such reports, but fortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of election. This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through electoral malpractices? This is very important question. Now we examine this question. Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conducts the election. In our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. It enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoys. The Chief Election Commission is Chief Election Commissioner, short form CEC, is appointed by the President of India. But once appointed, the Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government, even if the ruling party or the government does not like what the Commission does. Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the Election Commission of India. Now, powers. EC takes decisions on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of results. It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections, or to transfer some government officials. When on election duty, government officers work under the control of EC and not the government. In the last 25 years, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them. And now, the ruling parties often do not like what EC does, but they have to obey. This would not have happened if the EC was not independent and powerful. And after that, popular participation.
Another way to check the quality of election process is to see whether people participated in it with enthusiasm. If the election process is not free or fair, people will not continue to participate in the exercise. People's participation in election is usually measured by voter turnout figures. Turnout indicates as percent of eligible voters who actually cast their vote. Second, in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. And third, the interest of voters in election-related activities has been increasing over the years. And fourth, those who participated in any election-related activity in India. And now we will see all these things in Hindi. भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? हम चुनाव के गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं और अखबार और टीवी चैनलों के खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ियों की चर्चा रहती है और आरोप लगाए जाते हैं कि अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना होती है। पहला, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की। तीसरा, अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की और मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना। इनमें से अनेक खबरें सही होती हैं, पर यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि इस सवाल के विभिन्न पहलुओं पर हम गौर करते हैं। और सबसे पहला, स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष हुए हैं या नहीं, इसे जांचने का एक सरल तरीका है हमारे देश में कि उनका संचालन कौन करता है। क्या चुनाव कराने वाले लोग सरकार से स्वतंत्र है? अब देखते हैं हम। हमारे देश के लिए इन सवालों का जवाब काफ़ी हद तक सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। इसे न्यायपालिका जैसे ही आज़ादी प्राप्त है। अब देखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पर एक बार उनकी नियुक्ति हो गई, उसके बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाब देने के लिए नहीं रहता। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद न हो, तब भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा पाना लगभग असंभव है। दुनिया के शायद ही किसी चुनाव आयोग को भारत निर्वाचन आयोग जितने अधिकार प्राप्त होंगे। वो कौन से देखते हैं? निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। यह आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा देता है। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। पिछले करीब 25 वर्षों के दौरान
निर्वाचन आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया है, साथ ही उसने अपनी शक्तियों में विस्तार भी किया है। अगर चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर या पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक से नहीं हुआ है, तो वे वहां फिर से मतदान का आदेश दे सकते हैं। अगर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और शक्तिशाली नहीं होता तो यह संभव नहीं था। चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने का एक और तरीका है, इसमें लोग उत्साह से भागीदारी करते हैं या नहीं। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। पर भारत में चुनाव के लोगों की भागीदारी के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालें। पहला, चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना आमतौर पर मतदान करने वाले लोगों के आंकड़े को बनाया जाता है। दूसरा, भारत में अमीर और बड़े लोगों की तुलना में गरीब और निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। तीसरा, भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। अब हमको पढ़ना है बेटा, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके नतीजे ही है। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से न हो तो नतीजे हरदम ताकतवर जमात के पक्ष में ही जाते। भारत में चुनावी नतीजे खुद ही काफ़ी कुछ कह देते हैं। क्या कहते हैं देखो। पहला, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहे हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 में शासक पार्टियां हारी ही हैं। दूसरा, अमेरिका में मौजूदा चुनाव हुआ प्रतिनिधि शायद ही कभी चुनाव हारता है। वोट खरीदने में सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार हो या आपराधिक पृष्ठि वाले उम्मीदवार, उनका भी चुनाव हारना बहुत आम है। एक अपवादों को छोड़ दे तो अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेते हैं। अब हम देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। इन बातों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत में चुनाव बुनियादी रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। आप थोड़े ज़्यादा गंभीर मसलों पर अगर गौर करेंगे तो आपको तस्वीर थोड़ी अलग लगेगी। तो क्या लोग पूरी समझदारी और सारी चीज़ें जानकर फैसले करते हैं? क्या मतदाताओं के पास सचमुच स्वस्थ विकल्प उपलब्ध होते हैं? क्या चुनाव मैदान सबको बराबरी का अवसर देता है? क्या कोई सामान्य नागरिक चुनाव जीतने की कल्पना भी कर सकता है? इस तरह के सवाल भारतीय चुनाव व्यवस्था की सीमाओं और चुनौतियों की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। अब उसके कुछ मुख्य मुद्दे देखो। ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टियां गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगे, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत रहती है। देश के कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है और उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट
पा जाते हैं। अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीतियाँ और व्यवहार एक से होते हैं और बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। ये चुनौतियां भारत की ही नहीं हैं, कई स्थापित लोकतंत्रों की भी यही स्थिति है। बेटा यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। बस एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में हम देख लेते हैं और फिर इसको ये लेसन हमारा ख़त्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द outcome itself. If elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. In such situation, in ruling parties do not lose elections. The outcome of India's election speaks for itself. First, the ruling parties routinely lose elections in India, both at the national and state level. In fact, every 2 out of 3 elections held in last 25 years, the ruling party lost. Second, in the US, an incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose elections. Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. Barring very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's choice by the defeated party. Challenges to free and fair elections. All these kinds to a simple conclusion, elections in India are basically free and fair. Now we look some things. Can an ordinary citizen hope to win elections? Now answer. Candidates and parties with lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. In some parts of the country, candidates with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. Very often, elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practice. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. Now here we complete our third lesson, electoral politics.